Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this, we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में 26 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, अभी एक इंडिया स्किल्स रिपोर्ट आई थी, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 की। इस रिपोर्ट में बताया गया कि इंडिया में वो कौन सी स्टेट है जो कि मोस्ट प्रेफर्ड स्टेट है फॉर बोथ मेल एंड फीमेल फॉर द एम्प्लॉयमेंट। ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई या फिर ये रिपोर्ट प्रिपेयर की गई वी बॉक्स के द्वारा, जो कि एक टैलेंट असेसमेंट एजेंसी है। एंड इन्होंने ये इंडिया स्किल्स रिपोर्ट रिलीज़ करी, जो कि 11th एडिशन था इस इंडिया स्किल्स रिपोर्ट का। और इसमें इन्होंने बताया कि केरला वो स्टेट है जो कि बेस्ट या फिर मोस्ट प्रेफर्ड स्टेट है फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया बाय बोथ मेल एंड फीमेल, राइट। फिर इन टर्म्स ऑफ लार्ज स्टेट अगर देखें तो जो ये हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ हाईली एम्प्लॉयबल यूथ है वो हमें गुरुग्राम हरियाणा में देखने को मिलता है, फिर पुणे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, देन केरला एंड देन तेलंगाना। केरला की बात करें तो चीफ मिनिस्टर कौन रहेंगे? पिनरई विजयन। गवर्नर कौन रहेंगे? आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच कंट्री इज द डोमिनेंट सप्लायर ऑफ कुकिंग ऑयल इन द वर्ल्ड, नहीं इन इंडिया देखते हैं, ठीक है। विच कंट्री इज द डोमिनेंट सप्लायर ऑफ कुकिंग ऑयल इन इंडिया? तो सबसे पहले याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया। इंडिया में कुकिंग ऑयल का जो सबसे बड़ा डोमिनेंट सप्लायर है वो कौन है? ऑस्ट्रेलिया, फॉलोड बाय यूएसए एंड रशिया ऑन थर्ड पोजीशन, ठीक है। तो इंडिया का कुकिंग कोल इंपोर्ट्स 5 ईयर हाई पे रहा, एंड यहां पर हमें कब से सबसे ज्यादा कहां से देखने को मिला सप्लाई? वो देखने को मिला ऑस्ट्रेलिया से, करेक्ट, मार्क करके चलेंगे, फॉलोड बाय यूएसए एंड रशिया ऑन द सेकेंड पोजीशन। नेक्स्ट आ जाता है, इंडिया अलॉन्ग विद विच कंट्री अग्री टू एक्सटेंड क्रूशियल आईबीपी रूट। आईबीपी की फुल फॉर्म पता लगती तो आप आंसर बता दोगे। तो आईबीपी क्या होता है? इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल, इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल। तो पूछा जा रहा है इंडिया अलॉन्ग विद विच कंट्री अग्री टू एक्सटेंड देयर इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल, तो वो बांग्लादेश रहेगा। और इससे होगा क्या? एक तो ट्रेड फ्लरिश होगा, एक दूसरी कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड होगा वो बढ़ावा आएगा, राइट। आवाजाही होगी तो ट्रेड बढ़ेगा, आपका इकोनॉमी ग्रो करेगी, करेक्ट। बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाएंगी। और एक और चीज यहां पे डिक्लेयर करी गई कि सफरडिगी, ये एक पोर्ट है वेस्ट बंगाल में, इसे पोर्ट ऑफ कॉल डिक्लेयर किया गया है। पोर्ट ऑफ कॉल डिक्लेयर किया गया किसको? सफरडिगी को। ये कहां पर है?
वेस्ट बंगाल में। अब ये पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है? पोर्ट ऑफ कॉल होता है जब कोई भी अपना क्रूज शिप या फिर कार्गो शिप अपने कंटेनर्स को, राइट, अपने कार्गो को आके वहां पे ऑफलोड कर सके, उसे पोर्ट ऑफ कॉल कहा जाता है। और सफरडेगी पोर्ट को अभी पोर्ट ऑफ कॉल डिक्लेयर किया गया, जो कि ये वेस्ट बंगाल में रहेगा। ठीक, फिर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कई और हमें डील्स देखने को मिली। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो एक शिपिंग सेक्रेटरी लेवल टॉक्स हुई, फिर यहीं पे 22वीं स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग हुई, थर्ड मीटिंग हुई इंटर गवर्नमेंटल कमेटी के बीच में, एंड यहाँ पे काफी सारे अलग अलग डिसीजंस लिए गए। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। कैपिटल क्या रहेगी? ढाका। करेंसी क्या है? बांग्लादेशी टका। नेक्स्ट, India along with which organization signed a $100 million loan agreement to improve urban services and tourism facilities in the state of त्रिपुरा। तो त्रिपुरा स्टेट में हमें अर्बन फैसिलिटीज को डेवलप करना है, बेटर वाटर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकें, राइट। उसके लिए हम देखेंगे 42 किलोमीटर की नई डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स को यहाँ पे सेटअप किया जाएगा, स्ट्रॉम ड्रेन्स को साफ किया जाएगा, नहीं है तो इस्टेब्लिश किया जाएगा, 4 नए ट्रीटमेंट प्लांट्स यहाँ पे लाए जाएंगे, एंड फिर टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए नई नई फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएंगी, करेक्ट। जिससे क्या होगा? टूरिस्ट ज़्यादा आए, यहाँ पर ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे तो जो लोकल लोग हैं वहाँ के, जो कि इस टूरिज्म सेक्टर से इंक्लूडेड हैं, जो इस टूरिज्म सेक्टर में हैं, तो उनको यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलेगा, राइट। तो सिमिलरली याद रखेंगे कि इंडिया ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर ये $100 मिलियन लोन अग्रीमेंट साइन किया? तो वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक यहाँ पे ये $100 मिलियन प्रोवाइड कराएगा त्रिपुरा में, राइट, ताकि ये सारी फैसिलिटीज हम ला सकें। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन रहेंगे? मत्सुगु असाकावा। हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में। 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक को डेवलप किया गया था। 68 मेंबर्स रहेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक के। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्बन वाटर सप्लाई में 42 किलोमीटर की तो नई डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स, 4 नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और 55 किलोमीटर की स्ट्रॉम वाटर ड्रेन्स को यहाँ पे ठीक किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं नाबार्ड। नाबार्ड ने अभी किसके साथ एक टाई अप करा ताकि इंडिया के एएनआर सेक्शन में क्लाइमेट फाइनेंसिंग की जा सके, क्लाइमेट एक्शन लाया जा सके। तो नाबार्ड ने अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ ही यहाँ टाई अप किया ताकि इंडिया का एएनआर सेक्शन, एएनआर क्या है? एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्स एंड रूरल डेवलपमेंट सेक्टर। आई रिपीट, एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्स एंड रूरल डेवलपमेंट सेक्टर में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट लाने के लिए, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ लाने के लिए, क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए, क्लाइमेट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश करने के लिए, करेक्ट, ये एक डील साइन करी गई बिटवीन नाबार्ड एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसी के अलावा याद रखेंगे नाबार्ड ने अभी रिसेंटली बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ, जो कि एक एमओयू है, इनके साथ भी टाई अप करा ताकि एग्रीकल्चर एंड जो रूरल सेक्टर्स हैं इंडिया में उनको हम डेवलप कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं नाबार्ड, शाजी केवी यहाँ के चेयरमैन, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। इसको एस्टेब्लिश किया गया 1982 में। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो प्रेसिडेंट मत्सुगु असाकावा, हेडक्वार्टर्स रहेगा मनीला फिलीपींस में और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1966 में। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड बैंक एंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इन दोनों के बीच में अभी एक टाई अप हुआ जहां पर इन्होंने मिलके एक PPP ई कोर्स को लॉन्च किया। ठीक है, ये बिगनर्स का ई कोर्स रहेगा। PPP क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। एंड इससे क्या होगा कि जो पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज के बीच में जो हम टाई अप होता है, जो कोलैबोरेशन होता है, उसको बढ़ावा देने के लिए ये PPP ई कॉमर्स ई कोर्स को लॉन्च किया गया ताकि लोगों को इसके बारे में जागरूकता फैलाई जा सके एंड ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूचर में हमें ये PPP प्रोजेक्ट्स देखने को मिल सकें। ये जो कोर्स होगा 7 घंटे और 15 मिनट का ये आपका कोर्स रहेगा, राइट। यहाँ पे अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया जाएगा कि कैसे आपको किसी प्रोजेक्ट का एनालिसिस करना है, किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है, क्या क्या आपको वहाँ पे फाइनेंसिंग मॉडल्स पे ध्यान रखना है, राइट। तो ये वर्ल्ड बैंक एंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के बीच में ये एक PPP बिगनर्स ई कोर्स लॉन्च किया गया ताकि लोगों को यहाँ पे जागरूकता फैलाई जा सके अबाउट दिस PPP मॉडल, जो कि है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। नेक्स्ट आ जाते हैं ICICI प्रूडेंशियल AMC। They have changed their ETF symbol. I repeat, ICICI Prudential Asset Management Company Limited, इन्होंने अपना एक्सचेंज ट्रेडेड फंड प्रोडक्ट का जो सिंबल है उसको चेंज करके क्या कर दिया है? IETF। ठीक है, मार्क करेंगे। एंड दिस मूव इज इन लाइन विद सेबीज मास्टर सर्कुलर विच डिक्टेट्स दैट द स्कीम नेम शुड मिरर द सेम कैटेगरी। ठीक, नेक्स्ट
नेक्स्ट आ जाते हैं फिर सिडबी ने अभी ग्रांट किया 12.45 करोड़ रुपीस टू ईटीओ मोटर्स टू डिप्लॉय 300 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, राइट, 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो सिडबी ने 12.45 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया ईटीओ मोटर्स को, जहाँ पे ये डिप्लॉय करेंगे 300 इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स को। ये कहाँ पे डिप्लॉय की जाएंगी? हैदराबाद, तेलंगाना एंड न्यू दिल्ली में, अंडर दिस 50K EV4 ECU मिशन। फिर याद रखेंगे जो ईटीओ मोटर्स है ये डेवलप करेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग 180 चार्जिंग पॉइंट्स एंड ऑल दीज 3 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन ईटीओ मोटर्स स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इन तेलंगाना। ठीक है, नेक्स्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अभी ईरान के द्वारा 2 नई क्रूज मिसाइल्स को लॉन्च किया गया, एक तो ताल्या एंड नासिर। जो ताल्या है याद रखेंगे इसकी रेंज रहेगी 1000 किलोमीटर की, और नासिर जो है इसकी रेंज है 100 किलोमीटर की। किनकी है ये दोनों ईरान की क्रूज मिसाइल्स हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाता है विच स्टेट्स टूरिज्म कंडक्टेड ट्रायल रन ऑफ गायरोकॉप्टर फॉर हिमालय एयर सफारी। तो हिमालय एयर सफारी के लिए एक गायरोकॉप्टर का ट्रायल रन हुआ, किस स्टेट में हुआ? ये हुआ आपका उत्तराखंड में, राइट। तो उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने अभी रिसेंटली इन पार्टनरशिप विद रजस एयरपोर्ट्स एंड एडवेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड कंप्लीट किया पहला गायरोकॉप्टर ट्रायल फ्लाइट एट द बैरागी कैंप इन हरिद्वार, उत्तराखंड, करेक्ट। और इससे क्या होगा? उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने लॉन्च किया इंडिया का पहला हिमालयन एयर सफारी स्कीम यूजिंग दिस गायरोकॉप्टर, करेक्ट। तो ये आपके इससे क्या होगा? एक तो टूरिज्म है उसमें बढ़ावा देखने को मिलेगा, करेक्ट। अलग अलग फैसिलिटीज, अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी यहाँ टूरिस्ट को, ताकि उनको भी यहाँ पे घूमने में भी मजा आए, राइट। क्योंकि टूरिज्म में क्या होता है, बेसिकली लोग यहाँ घूमने आते हैं, एंजॉय करने आते हैं, टाइम स्पेंड करने आते हैं, राइट। तो बेटर फैसिलिटीज होंगी, बेटर अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे देखेंगी, तो ज्यादा से ज्यादा लोग भी अट्रैक्ट होंगे। तो उत्तराखंड टूरिज्म ने अभी ये कंडक्ट कराया ट्रायल रन ऑफ गायरोकॉप्टर फॉर हिमालयन एयर सफारी। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर स्पोर्ट्स के ऊपर। तो फोर्ब्स के द्वारा अभी वर्ल्ड की हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट लिस्ट रिलीज की गई 2023 की। आई रिपीट, फोर्ब्स के द्वारा वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट लिस्ट रिलीज की गई है 2023 के लिए। और यहाँ पे किन्होंने टॉप किया है? तो वो है ईगा स्वातिक, राइट। ईगा स्वातिक ने यहाँ पे टॉप किया, जो कि पॉलिश टेनिस प्लेयर है, करेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईगा स्वातिक पोलैंड की हैं, टेनिस से बिलोंग करती हैं एंड 23.9 मिलियन डॉलर की इनकी अर्निंग रही 2023 में, करेक्ट। और यहीं पे अगर पीवी सिंधु की बात करें, ये 16वें नंबर पे आ जाती हैं, इनकी अर्निंग रही 7.1 मिलियन डॉलर की, राइट। बैडमिंटन प्लेयर है एंड इंडिया को ये रिप्रेजेंट करती हैं इन बैडमिंटन। नेक्स्ट आ जाते हैं मैनचेस्टर सिटी। ये एक यूके का फुटबॉल क्लब है, राइट। इन्होंने फ्लूमिनेंस को यहाँ पे डिफीट कर दिया टू विन द फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 टाइटल को। ये 20वां एडिशन था फीफा क्लब वर्ल्ड कप का, राइट। एंड यहीं पर याद रखेंगे मैनचेस्टर सिटी ने ये अपना 5वीं बार फीफा क्लब वर्ल्ड कप टाइटल को जीत लिया है। ये आपका 12 दिसंबर से लेके 22 दिसंबर तक ये आपका इवेंट हुआ था। 20वां एडिशन था फीफा क्लब वर्ल्ड कप का, राइट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट डेज। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 24 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। एंड ये ऑब्जर्व किया जाता है ताकि जो कंज्यूमर राइट्स हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे को ही हम बोलते हैं भारतीय ग्राहक दिवस या फिर नेशनल कंज्यूमर्स डे। पहली बार नेशनल कंज्यूमर्स डे कब ऑब्जर्व किया गया था? 1986 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया था, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं गुड गवर्नेंस डे। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये मार्क जरूर करना। गुड गवर्नेंस डे कब ऑब्जर्व करते हैं? तो हर साल हम 25 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं गुड गवर्नेंस डे। एंड अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, 10th फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लेट अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर हम ऑब्जर्व करते हैं गुड गवर्नेंस डे। 2023 में हमने 99th बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पर इनकी ऑब्जर्व करी। एंड इसी के साथ साथ याद रखेंगे 2023 में हमने 10th गुड गवर्नेंस डे ऑब्जर्व करा। अगर मैं बात करूं गुड गवर्नेंस वीक की, तो गुड गवर्नेंस वीक ये तीसरा गुड गवर्नेंस वीक था जो कि हम 19 से 25 दिसंबर तक ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन पर। केरला इमर्जेस एज द मोस्ट प्रेफर्ड स्टेट टू वर्क। इंडिया का कुकिंग कोल इंपोर्ट की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर टॉप पर है, फॉलोड बाय यूएसए एंड रशिया। देन इंडिया एंड बांग्लादेश ने अग्री किया टू एक्सटेंड क्रूशियल आईबीपी रूट, इससे ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हमें देखने को मिलेगा।
देन एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड इंडिया, इन्होंने एक $100 मिलियन लोन अग्रीमेंट साइन किया टू इम्प्रूव अर्बन सर्विसेज इन टूरिज्म फैसिलिटीज इन त्रिपुरा। देन नाबार्ड ने एक पैक्ट साइन किया एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ टू फैसिलिटेट क्लाइमेट एक्शन इन इंडियाज ANR सेक्शन। देन वर्ल्ड बैंक एंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने लॉन्च किया ट्रिपल P बिगनर्स ई कोर्स टू फॉस्टर ट्रिपल P कोलैबोरेशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी बिल्डिंग। देन ICICI प्रूडेंशियल AMC चेंज देयर ETF सिंबल। सिडबी ने ग्रांट किया 12.45 करोड़ रुपीज टू ETO मोटर्स ताकि ये डिप्लॉय कर सके 300 थ्री व्हीलर्स इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स को, कहाँ पर, हैदराबाद में और न्यू दिल्ली में। देन DSCI एक्सीलेंस अवार्ड्स अवॉर्डेड एट NASSCOM DSCI एनुअल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी समिट 2023। ईरान्स नेवी इंक्लूडेड क्रूज मिसाइल्स ताल्या एंड नासिर टू देयर आर्मरी। तो पूछा जा सकता है ताल्या और ये नसीर कहाँ की क्रूज मिसाइल है, किस कंट्री की, तो ईरान की। देन उत्तराखंड टूरिज्म कंडक्टेड ट्रायल रन ऑफ गायरोकॉप्टर फॉर हिमालय एयर सफारी। देन फॉर्ब्स वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट लिस्ट 2023 की रिलीज की गई एंड पॉलिश टेनिस प्लेयर ईगा स्वातेक ने यहाँ पे टॉप किया एंड इंडिया की PV सिंधु यहाँ पे 16th रैंक पे आई। देन मैनचेस्टर सिटी ये यूके का फुटबॉल क्लब है, इन्होंने फ्लूमिनेंस को 20th एडिशन ऑफ द फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 में हराया और इनकी ये 5th टाइटल रहेगा। देन नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे 24 दिसंबर को एंड गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। व्हाट इज द मिनिमम ईयर्स फॉर विच ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स विल बी लीज। तो याद रखेंगे अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा अभी लीज के रूल्स, यहाँ पे न्यू लीज रूल्स लॉन्च किए गए हैं और इन न्यू लीज रूल्स के आधार से हम देख रहे हैं कि जो ये ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स है ना, इनको 3 साल के लिए यहाँ पे लीज किया जाएगा फॉर कंडक्टिंग रिसोर्स मैनेजमेंट एंड सर्विस एंड फिर इसको 2 साल के लिए अलग से एक्सटेंड कर दिया जाएगा और 5 साल के बाद ये लीज यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। लेकिन इसके बाद याद रखेंगे जो ये इसके बाद जब आपकी कंस्ट्रक्शन की बारी आएगी ना, कि आपको मान लो विंड एनर्जी प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन करनी है वहाँ पर, राइट, तो उस प्रोजेक्ट के ऊपर आपको फंक्शनैलिटी लानी है, तो फिर आपकी 35 साल तक की आपकी लीज यहाँ पर प्रोवाइड की जा सकती है। पर इनिशियली जो मिनिमम लीज यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी फॉर ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स वो रहेगी 3 साल की, मिनिमम 3 साल की, इसके बाद 2 साल भी एक्सटेंड किया जा। मूविंग ऑन, किस यूनिवर्सिटी ने अभी मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023 को जीत लिया फॉर द रिकॉर्ड 25th टाइम। इससे पहले याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, अनुराग सिंह ठाकुर, इनके द्वारा अभी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया लोगों को, राइट। यहाँ पर 42 स्पोर्ट्स पर्सन, कोचेस एंड एंटिटीज को यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम, ठीक है। तो अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा ये नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स लॉन्च किए गए, अनाउंस किए गए एंड अवार्ड दिया गया द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा राष्ट्रपति भवन में, पहली चीज। अब क्वेश्चन आ रहा है आपका कि किस यूनिवर्सिटी ने मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी को जीत लिया है, तो वो है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर पंजाब में ये रहेगी, ठीक। और इस यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी को जीत लिया फॉर द रिकॉर्ड 25th टाइम। पहली चीज तो ये हो गई। अब इसके अलावा और याद रखेंगे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो वो रहेंगे बैडमिंटन के प्लेयर्स चिराग चंद्रशेखर सेठी एंड रानिक रेड्डी स्वास्तिक साईराज, इन दोनों को यहाँ पर सम्मानित किया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से, ये बैडमिंटन प्लेयर हैं। देन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अभी हमने देखा अमृतसर पंजाब, इनको मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी से सम्मानित किया गया फॉर 25th टाइम। अर्जुन अवार्ड्स की बात करें तो 26 अवार्ड इसको दिया जाएगा। द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है कोचेस को, तो 8 कोचेस को यहाँ पे दिया जाएगा। ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट की बात करें तो 6 अवार्ड इसको यहाँ पर इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं, सोनी स्पोर्ट्स हैज रॉब्ड, नॉट रॉब्ड और हम बोले अपॉइंटेड किनको, एज किस सेक्टर को एज देयर ब्रांड एम्बेसडर फॉर फुटबॉल कैंपेन। तो याद रखेंगे कार्तिक आर्यन को यहाँ पर अभी सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने अपॉइंट किया है एज देयर ब्रांड एम्बेसडर, ताकि जो इनका सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क का जो कैंपेन है योर होम ऑफ फुटबॉल, इसके लिए यहाँ पर इनको अपॉइंट किया गया एज द ब्रांड एम्बेसडर, किनको, कार्तिक आर्यन को, ठीक। यहाँ पे इंक्लूड करेगा यूएफए यूरोपियन चैंपियनशिप, देन यूएफए चैंपियंस लीग, यूएफए यूरोपा लीग, यूएफए कॉन्फ्रेंस लीग, यूएफए नेशंस लीग, बुंदेसलीगा, एमिरेट्स FA कप, दुरंत कप, रोशन सऊदी लीग एंड अमंग्स अदर। यहाँ पर बेसिकली इंडिया में फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए इनको यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया। मूविंग ऑन टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा अनवेल किया गया एक मोबाइल एप्लीकेशन जो एम्पावर करता है
जूट फार्मर्स को कैसे एम्पावर करता है, इनको यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में बताएगा, यहाँ पर वेदर फॉरकास्ट प्रोवाइड कराएगा, यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताएगा, यहाँ पर फार्मिंग के आइडियाज़ बताएगा, ट्रिक्स के बारे में बताएगा कि कैसे आप और बेटर तरीके से फार्मिंग कर सकते हो जूट की, और बेटर तरीके से कैसे आप जूट का केयर कर सकते हो, उसको सेव कर सकते हो, राइट। तो इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी गई। पूछा जा रहा है क्या नाम रहेगा, देखो लॉन्च की गई मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा। एप्लीकेशन रहेगी पाथ मित्रों, और इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया पाथ मित्रों को, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे डेवलप किया गया था पाथ मित्रों को। पाथ मित्रों 6 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, राइट। एंड यहाँ पर एक चैटबॉट भी प्रोवाइड कराया जाता है इस एप्लीकेशन में कि अगर किसी भी फार्मर्स को, अभी किसी भी व्यक्ति को जो कि जूट इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उनको पेमेंट से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है या फिर किसी और चीज़ से उनको कोई दिक्कत आ रही है, तो वो कॉन्टैक्ट कर सके ऑन दिस चैटबॉट। नेक्स्ट आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इन्होंने भी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है ना, हम उनको हेल्प कर सकें। देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या हो जाते हैं, जैसे आपके आर्टिशियंस हो गए, कोई प्रोडक्ट बना रहा है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल कि इन्होंने कोई साबुन बनाया, राइट, सोप बना दिया किसी ग्रुप ने, राइट, वो सोप की मार्केट कर रहे हैं। फिर कोई दूसरा प्रोडक्ट है, कोई दूसरी मार्केट में आ जाते हैं, हम देख रहे हैं वहाँ पे वो आपके कपड़े बना रहे हैं, राइट, आपके क्लोथ्स बना रहे हैं। दूसरी मार्केट में हम देख रहे हैं हम आपकी जो चप्पल होती हैं वो बना रही हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है। तो इससे क्या होगा, ये बना तो देते हैं, लेकिन दिक्कत कहाँ पर आती है, जब ये सेल नहीं कर पाते इन प्रोडक्ट को, इनकी ऑडियंस बहुत लिमिटेड हो जाती है, राइट, जहाँ पे ये सेल कर सकें। तो उसी चीज़ को हेल्प करने के लिए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने अभी एक MOU साइन किया जियो मार्ट के साथ, ताकि इन आर्टिशियंस को, इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा सके जहाँ पे ये अपने प्रोडक्ट्स जो ये बनाएंगे उसको सेल कर सकें, राइट। इससे क्या होगा, इनकी ऑडियंस में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी, राइट। तो ये जियो मार्ट के साथ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने यहाँ पे एक MOU साइन किया ताकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको यहाँ पे हेल्प किया जा सके। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं 25th एशियन यूथ चेस चैंपियन की। इसके दौरान इंडिया के चेस प्लेयर कियाना परिहर, राइट, अंडर 8 एज गर्ल्स की कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। एंड वहीं पर हर्ष सुरेश अंडर 16 ओपन की कैटेगरी में इन्होंने भी यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता इन दिस 25th एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप, जो कि अल एन सिटी में हुई ऑफ अबू धाबी इन UAE फ्रॉम 12 से 22 दिसंबर। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ डी गुकेश, इन्होंने यहां पर चेन्नई ग्रैंड मास्टर टाइटल को भी जीत लिया है, राइट। मार्क करके चलेंगे, डी गुकेश अभी चेन्नई ग्रैंड मास्टर टाइटल का इनॉग्रल एडिशन हुआ था, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था, 15 से 31 दिसंबर तक हुआ था। एंड इन्होंने यहां पर गोल्ड मेडल जीत लिया है, या फिर इन्होंने इस टाइटल को जीत लिया बेसिकली। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो छठा एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहां पर होगा, तमिलनाडु में होगा। यहां पर एक मैस्कॉट का नाम याद रखेंगे, क्या नाम रहेगा मास्कॉट का, वीरा मंगाई। यहां पे जो टॉर्च है उसका नाम याद रखेंगे, वो है थामजी, राइट। तो अब देख पढ़ते हैं इसके बारे में। अभी हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, अनुराग सिंह ठाकुर, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। इनके द्वारा ऑफिशियल जर्सी, लोगो, मास्कॉट इसको लॉन्च किया गया ऑफ द 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो कि तमिलनाडु में होंगे। ठीक है, फिर यहीं पे मैस्कॉट हमने क्या देखा, वीरा मंगाई। हमने टॉर्च का नाम क्या देखा, थामजी। ये वीरा मंगाई क्या है, एक लेजेंडरी फ्रीडम फाइटर, तमिल क्वीन विलू नचियार के बेसिस पे ये मैस्कॉट अपॉइंट किया गया है यहाँ पर। देन जो छठा खेलो इंडिया यूथ गेम्स है तमिलनाडु में होगा, 4 सिटीज में होगा, चेन्नई, त्रिची, मदुरई, कोयम्बटूर। 19 जनवरी से 31 जनवरी तक 2024 में होगा, राइट। और इसी के अलावा अगर पूछा जाए कि 5वां एडिशन, ये तो छठा एडिशन हो गया, 5वां एडिशन का हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, तो दिल्ली एंड पुणे महाराष्ट्र में हमें ये देखने को मिला था। फिर इसी के अलावा याद रखेंगे जो खेलो इंडिया गेम था ना, सबसे पहले सिर्फ खेलो इंडिया की बात करें तो खेलो इंडिया इनिशिएटिव 2017 में लॉन्च किया गया था, ताकि स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जा सके। एंड इंडिया में स्पोर्ट्स को, क्योंकि हम देखते हैं क्रिकेट का कितना बड़ा एक योगदान है, लोग कितने ज़्यादा क्रेजी हैं आपके फुटबॉल क्रिकेट से रिलेटेड। सिमिलरली इंडिया में स्पोर्ट्स से बाकी स्पोर्ट्स को भी प्रमोट करने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। एंड फिर इसके अलावा खेलो इंडिया स्कूल गेम्स ये लॉन्च किया गया था 2018 में, और खेलो इंडिया स्कूल गेम्स को ही चेंज करके खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया था 2019 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट आता है फिर खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ये हम देख ही चुके हैं, पहला एडिशन 2018 में हुआ था और अभी छठा एडिशन हो रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, कहां पर, तमिलनाडु में।
एक चीज़ और, ये जो लास्ट एडिशन था, 5th एडिशन, याद रखेंगे अक्रॉस दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी, पंचकुला, भोपाल, यहाँ पर हमें देखने को मिला था। मूविंग ऑन, ऑबिटरी की बात करते हैं तो रॉबर्ट एम सोलो ये नोबेल प्राइज विनर रहेंगे। इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था इन इकोनॉमिक्स इन 1987 एंड इनका भी निधन हो गया एट द एज ऑफ 99। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज पे आ जाते हैं। नेशनल फार्मर्स डे या फिर हम बोले किसान दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है? 23 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल फार्मर्स डे या फिर किसान दिवस। एंड दिस इज बेसिकली टू हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर इन आर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। फिर याद रखेंगे ये जो नेशनल फार्मर्स डे ना किन की बर्थ एनिवर्सरी पे ऑब्जर्व किया जाता है? चौधरी चरण सिंह की बर्थ एनिवर्सरी पे ऑब्जर्व किया जाता है। ये 5th प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के फ्रॉम 1979 टू 1980 एंड जो फार्मर्स कम्युनिटी है, इंडियन फार्मर्स कम्युनिटी है, उनके ये लीडर भी थे, चौधरी चरण सिंह, करेक्ट। और इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पर हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल फार्मर्स डे या फिर किसान दिवस। 2023 में 121वीं बर्थ एनिवर्सरी यहां पर ऑब्जर्व की गई चौधरी चरण सिंह की, ठीक। और पहली बार आपका नेशनल फार्मर्स डे कब ऑब्जर्व किया गया था? सन 2001 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। नेम द यूनिवर्सिटी दैट हैज पार्टनर्ड विद ICCR, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के साथ अभी किस यूनिवर्सिटी ने पार्टनर किया ताकि एक UTIKS पोर्टल को लॉन्च किया जा सके? ये क्या है? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज सिस्टम, UTIKS पोर्टल। तो कौन सी यूनिवर्सिटी रहेगी? वो है सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। इन्होंने ICCR के साथ मिलकर यहाँ पे ये UTIKS पोर्टल को लॉन्च करा, ठीक। और ये UTIKS पोर्टल बेसिकली क्या काम करेगा? इसका क्या किस ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? बेसिकली इंडियन कल्चर को वर्ल्ड वाइड प्रमोट करने के लिए, राइट, ताकि वर्ल्ड वाइड जो ऑडियंस है ग्लोबली इंडिया के कल्चर को, इंडिया की रिच सिविलाइजेशन को इन अ लर्नर फ्रेंडली मैनर उनके सामने ले जाने के लिए इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, नेम द स्पेस एजेंसी कंपनी दैट हैज रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट 2 प्रोटोटाइप सैटेलाइट्स ऑफ क्यूपरसैट-1 एंड क्यूपरसैट-2 बाय यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस 5 रॉकेट टू लो अर्थ ऑर्बिट फॉर प्रोजेक्ट क्यूपर सैटेलाइट सिस्टम। तो अमेजॉन कॉर्पोरेशन इनके द्वारा यहाँ पे याद रखेंगे ये फर्स्ट 2 प्रोटोटाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स क्यूपरसैट-1 एंड क्यूपरसैट-2 इनको यहाँ पे लॉन्च किया गया। और किसकी मदद से? यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस 5 रॉकेट की मदद से। कहाँ से? केप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन जो कि फ्लोरिडा USA में है, वहां से। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज रिसेंटली हैंडेड ओवर द फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट क्रू मॉड्यूल स्ट्रक्चर टू इसरो फॉर गगनयान स्पेसक्राफ्ट? तो किसके द्वारा ये हैंड ओवर किया गया? KCP हैवी इंजीनियरिंग के द्वारा ये इनको हैंड ओवर किया गया टू इसरो फॉर द पर्पज ऑफ असेसिंग टेक्नोलॉजी रेडीनेस। मतलब जो गगनयान स्पेसक्राफ्ट है उसकी जो टेक्नोलॉजी है क्या वो रेडी है या नहीं, उसको टेस्ट करने के लिए बेसिकली ये लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने अभी एक तो लोन अप्रूव किया $300 मिलियन का, एक लोन अप्रूव किया है $100 मिलियन का। ये 2 लोन याद रखेंगे। $300 मिलियन का जो लोन अप्रूव किया गया है ये तमिलनाडु स्टेट के लिए किया गया है ताकि यहाँ का जो अर्बन वाटर सीवेज सिस्टम है उसको हम और बेटर कर सकें, उसमें डेवलपमेंट ला सकें और जहाँ पे भी कुछ भी टचअप्स की ज़रूरत है, राइट, जहाँ पर हम उसको ठीक कर सकें उसको ठीक किया जाए। तो तमिलनाडु में $300 मिलियन का लोन अप्रूव किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा ताकि अर्बन वाटर सीवेज सिस्टम को यहाँ पर डेवलप किया जा सके। दूसरा, जो ये $100 मिलियन का लोन अप्रूव किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ये था इंस्पायर्स प्रोग्राम के लिए। ये इंस्पायर्स प्रोग्राम कहाँ का है? सिक्किम का है। और इसके अंडर जो विमेन हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनको यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई जाएंगी, उनको यहाँ पे स्किल्स प्रोवाइड की जाएंगी, उनको ट्रेन किया जाएगा ताकि जो हाई ग्रोथ एंड प्रायोरिटी सेक्टर्स एरिया है वहाँ पर उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क सेक्शन। पहला, अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द वर्ल्ड वाइड ट्रेड पासेस थ्रू द सुएज कैनाल, जो अभी हॉल्ट पर आ गया, डिसरप्ट हो गया बाय द अटैक्स इन द रेड सी। दूसरा, व्हाट इज पेंटिया टगोरई दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज़, ये एक डिस्कवरी की गई थी अभी रिसेंटली वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे, राइट, एंड वेस्ट बंगाल के रिसर्चर्स के द्वारा। नाम बताओ किन के नेमिंग के बिहाफ पर, राइट, ये पेंटोया टगोरई का नेमिंग की गई है, राइट। और ये क्या है? प्लांट्स की ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है, कल ही हमने पढ़ाया है। देन विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द भूमि राशि पोर्टल। चौथा, विच स्टेट इज द मेन स्टेट पार्टनर ऑफ द इंटरनेशनल गीता सेमिनार एंड गीता महोत्सव। पांचवा, विच यूनिवर्सिटी हैज वन द मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2025।
3। तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स। काफ़ी मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पे मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए। सभी बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ वो नीचे कमेंट ज़रूर से करें। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.